پاکستان کا یہ علاقہ کیگا جسے مارخور کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، یہاں 2005 سے مارخور کا قانونی شکار کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹرافی ہنٹنگ کے لیے 1.25 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کی جاتی ہے۔ اس مہنگے شوق کو پورا کرنے کے لیے شکاری کو مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ برف سے ڈھکے خطرناک اور دشوار گزار راستے، شاہراہ قراقرم سے کئی گھنٹے پیدل مسافت کے بعد کیگا کی شکارگاہ تک پہنچنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ اس بار مارخور کی ٹرافی ہنٹنگ کا پرمٹ امریکی شہری مائک کارپینٹو نے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے میں حاصل کیا ہے۔ بیس کیمپ سے پوری تیاری کے ساتھ صبح سویرے پہاڑ کی چوٹی کی طرف پیش قدمی کے ساتھ ہی مارخور آس پاس قلانچے بھرتے نظر آتے ہیں، لیکن شکاری کی نگاہ کسی بڑے مارخور پر ہے، اس لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ شکار کا پہلا روز بیس کیمپ سے کچھ ہی فاصلے پر شاندار اور بڑا مارخور جھنڈ میں ملا۔ 450 میٹر کا فاصلہ اور ہوا کے مخالف سمت میں شکار، نشانہ مشکل ہے مگر مارخور انتہائی بڑا ہے، جس پر رسک لیتے ہوئے فائر کرنا پڑا مگر نشانہ چوک گیا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی مارخور خبردار ہو گئے، اب شکاری کی مشکل بڑھ گئی، یعنی مزید کئی روز تک شکار ڈھونڈنا ہوگا۔ برف پگھلا کر پانی بنانا اور نقطہ انجماد کو چھوتا درجہ حرارت، ایسے میں شکار کا انتظار، شکاری سمیت معاونین بھی مشکل سے دوچار ہیں۔ شام ڈھلتے ہی آگ جلانے کا بندوبست اور کھانا بنانے کی تیاری، رات خوشگپیوں میں گزر گئی، صبح ہوئی۔ مائک کارپینٹو اس بار پرجوش ہیں کہ وہ شکار کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ شکار کا آج چوتھا روز ہے، شکاری کو جو مطلوبہ شکار ہے وہ ابھی تک نہیں ملا۔ ویسے چھوٹے مارخور بہت زیادہ اس علاقے میں، لیکن شکاری کو 40 انچ سے لمبے سنگوں والے مارخور کی تلاش ہے۔ اس وقت ریکی ہو رہی ہے، ممکن ہے کچھ دیر بعد تک شکار مل جائے۔ برف اور پہاڑوں میں 8 دن بھٹکنے کے بعد بالآخر وہ پل آیا جس کا انتظار تھا، یعنی اعلیٰ پائے کی ٹرافی نظر آئی۔ اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وائلڈ لائف ایکٹ کے مطابق مارخور زخمی ہو جائے تو کسی اور پر گولی نہیں چلائی جا سکتی، اور اگر نشانہ چوک جائے تو مزید کئی روز انتظار کا عذاب سہنا پڑتا۔ اس لیے یہ فائر اہمیت کے حامل ہے۔ 500 میٹر کی دوری، اور اس بار مائک کارپینٹو نے کمال کر دکھایا۔ شکار ہو گیا، اب مقامی نگبانوں کی ذمہ داری ہے کہ شکار کو کھائی سے نکال کر بیس کیمپ لائے، جو ایک دلچسپ ایڈونچر ہے۔ Well, I just got to hunt the greatest trophy in the world, a Kashmir Markhor, and I think I'm the luckiest guy in the world to get to do it, because never did I ever dream of doing it. I didn't even know what one was until a few years ago. And when somebody said you had to do it in Pakistan, I couldn't believe it. So anyway, I found myself over here to Pakistan, had a wonderful time with all the local people, all the villages, and with the greatest opportunity in the world to get to hunt the Kashmir Markhor. We hunt Malakit and his fellow people in the village. They've been wonderful. They've helped me up and down the mountain. Otherwise, I'd still be at the bottom of the mountain.
And this is a tough place to be up here. What you guys do every day is amazing. खतरनाक बर्फीले रास्तों और यखबस्ता हवाओं का सामना किया, कई रोज तक मुसलसल जदोजहद की और बिलाखिर माइक को शिकार मिल गया और मारखोर ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हो गया। कैगा में 2005 से मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग होती है। यहाँ गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी आयद है। मारखोर की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद ने कम्युनिटी कायम की है, जिसके निगहबान दिन रात पहरा देते हैं। यहाँ पे हमारे फैमिली से मेरे चाचाजाद भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, और ये खास कर ये कैगा मारखोर कंजर्वेशन हमारे ज़ाती मिल्कियती रकबे में है, जिससे हम अपने ज़ाती तौर पे इसके तहफ़्फ़ुज़ किए हैं। तो इसके दौरान मेरा एक भाई वाचर था यहाँ, और वो भी इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ ड्यूटी करने के दौरान वो फौत हो चुका है। उसको पत्थर लगा है, पत्थर लगने से वो गिरा है काफ़ी दूर तक वो। तो इस तरह की काफ़ी कुर्बानियाँ हमने दी हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह हमें तो आज कैगा कम्युनिटी गेम रिजर्व एक कोस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक मिसाल बना है। और यहाँ पे लोग समझ रहे थे यार यहाँ पे इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये कैगा कंजर्वेशन कम्युनिटी जब हमने बनाए हैं, और मारखोर के नहीं बल्कि यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स भी हैं और बाकी और किस्म के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं, इन सारों के हमने तहफ़्फ़ुज़ किए हैं। मारखोर की हिफाजत और हर मुकाम तक रसाई के लिए करोड़ों की लागत से यहाँ रास्ते बनाए गए हैं। 90 की दहाई से यहाँ मारखोर महफूज हैं। साल में सिर्फ एक बार ट्रॉफी हंटिंग होती है, बाकी सैकड़ों मारखोर महफूज हैं। ये तकरीबन सन 1980 में एक हमारा एक ख्वाब था कि यहाँ पे एक मारखोर बच जाए और यहाँ हम एक कम्युनिटी बनाऊं और ये मारखोर का पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो मैंने मुख्तलिफ एनजीओ से पैसे लाकर यहाँ पे लोगों के लिए तरक्याती काम शुरू किया। तो बस यहाँ पे अल्लाह के फजल से वो मारखोर सन 2005 में यहाँ मारखोर के ट्रॉफी हंटिंग हुआ। मैंने इस मारखोर को बचाने में काफ़ी हमारे कम्युनिटी वालों ने, हमारे गांव वालों ने, हम सब ने मिलकर इसको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया। और आज यहाँ पे हम अपने मदद आपके तहत रास्ते बनाया, और यहाँ पे हम वाचर हट बनाया, गेस्ट हाउस बनाया। आज बाहर के जो लोग आकर यहाँ पे शिकार करते हैं, और अल्लाह के फजल ये कोस्तान के वहीद गांव है नाला है जो कैगा कंजर्वेशन से मशहूर है। कोस्तान के लोगों में इतना शऊर है कि नायाब जानवरों की हिफाजत के लिए रजाकाराना तौर पर भी खिदमात फराम करते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। वैसे भी मेरा ये शौक है कि बाकी चीज़ों से हटकर कम्युनिटी में ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं। मेरा चचा है मलिक फिलकूस, तो उसने ये काम शुरू किया, तो हम साथ वॉलंटरीली मैं उसके साथ ही था। तो अभी भी जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो शौकिया तौर पे हम इधर आते हैं। सारे हमारे कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, साथ शिकार वगैरह फार्नर आते हैं, तो हम उनके साथ थोड़ी बहुत गाइडेंस हो जाती है। कैगा में मारखोर के अलावा बर्फानी चीता, रीछ और नायाब परिंदे भी पाए जाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी कैगा कंजर्वेशन एरिया में गाहे बगाहे विजिट करते हैं और मुकामी निगहबानों की निशानदही पर गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये अपर कोस्तान अपना एक वाइल्ड लाइफ डिवीजन बनना चाहिए, जैसा लोर बनना चाहिए, इसी तरह पालस बनना चाहिए। तो ये एक फोर्स डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इसके लिए बहुत चैलेंजेस है, वसाइल की बहुत कमी। इसके बावजूद हम अपना जो काम है वो करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, जिसमें मारखोर है, ये कॉमन लिपर्ड है, स्नो लिपर्ड है, मस्क डियर है, गोराल है, बहुत वाइल्ड लाइफ है। उसी में ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है। शिकार के बाद मारखोर को बेस कैंप लाया जाता है, जहां मारखोर हांडी बनाई जाती है और शिकार की खुशी में जश्न होता है। आखिर में कम्युनिटी की जानिब से ट्रॉफी हंटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया जाता है, जहां शिकारी और दीगर मेहमानों को रवायती शाल और टोपी पहनाई जाती है। वाज़ेह रहे कि ट्रॉफी हंटिंग से हासिल होने वाली रकम का 20% हुकूमत जबकि 80% मुकामी कम्युनिटी को दी जाती है।